Hello students, as you all know, we have been lately discussing about three-phase induction motor. The first topic we will be basically encountering after understanding the principle of induction motor is equivalent circuit of three-phase induction motor. The sequence of topics in this current video will be as highlighted in the figure. It's a long video. I will require your patience to go through the topic. I will basically add timestamps to the specific topics discussed within this video. So the first thing that we're going to discuss is induction motor as transformer. This is a very basic concept, and to basically understand the development of equivalent circuit of three-phase induction motor, it's very necessary to start with this thing. Then we will understand the concept of slip. It will be very useful, and it will basically help us in developing and understanding how the slip is related to induction motor, and it's very necessary. Normally, for understanding motors, we tend to understand the speed, whereas in induction motor, the concept of slip is introduced to help us understand the effect of slip on different parameters. So effect of slip is basically on the rotor parameters, and we will going to be discussing different parameters that are affected due to the slip of induction motor. और होता ही है कि व्हेन लोडिंग कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं तो स्लिप जो है वो चेंज होती है, और जब स्लिप चेंज होती है तो उसका रोटर पैरामीटर्स के ऊपर भी इफेक्ट होता है. एज ए रिजल्ट ऑफ इट, अपडेटेड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर, जो रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है वो उसको अपडेट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो है ओवरऑल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर क्या बनता है, और वो हम इसकी डेवलपमेंट है. तो जो इसकी डेवलपमेंट जो है ये बड़ा सीक्वेंस है. सो लेट्स प्लीज जस्ट रिमेन कनेक्टेड एंड फॉलो इट. So we start with induction motor as transformer. This is a very basic concept, and it's basically related to this thing कि जो आपकी इंडक्शन मोटर है उसको ट्रांसफार्मर जैसा बिहेव करता है. एज फार एज जब तक कि इंडक्शन मोटर रेस्ट में रहती है तो वो ट्रांसफार्मर बन रही है. और ट्रांसफार्मर अगर आपने देखा हो तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा. So let me basically explain the different parameters that are basically available on the circuit. ये मैंने ये सर्किट जो है ये यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, और फिर डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनको भी जो है मैंने मेंशन कर दिया है. इसमें अगर आप देखें तो ऑन द प्राइमरी साइड, क्योंकि दिस इज टेकन एज द प्राइमरी साइड एंड दिस इज टेकन एज द सेकेंडरी साइड. ट्रांसफार्मर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक कॉमन कोर होती है जिसके ऊपर दोनों वाइंडिंग्स जो हैं वो वाइंड की जाती हैं. So you have basically primary winding and then we have the secondary winding. On the primary side जो important parameters हैं उसमें सबसे पहले जो है वो R1 है, this is primary winding resistance. Then we have X1, this is primary winding leakage reactance, and then we have RC, this is basically represent the core losses, and jointly ये hysteresis और eddy current losses को represent कर होता है. X of M, this is basically the magnetizing current loss. ठीक है, ये मैग्नेटाइजेशन जो आपको रिक्वायर होगी आपकी कोर पर. On the secondary side, basically we have only two parameters. One is basically the R2, the secondary winding resistance, and X2 is basically secondary winding leakage reactance. That is basically the overall equivalent circuit of transformer. अब आप ये कहेंगे कि भाई इसका इक्विवेलेंट जो है वो आपकी इंडक्शन मोटर के साथ क्या लिंक बनता है. तो लेट मी हाईलाइट दिस लिंक. और अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शनली वहाँ पे हमारे पास जो थी प्राइमरी वाइंडिंग थी ट्रांसफार्मर में. तो ऑन द इंडक्शन मोटर साइड अगर हम देखें तो हमारे पास स्टेटर वाइंडिंग होती है या स्टेटर होता है. सिमिलरली ऑन द सेकेंडरी साइड वी हैव सेकेंडरी वाइंडिंग, वहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग थी. और अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रोटर की वाइंडिंग होती है. ठीक है, वहाँ पर भी जो है सेकेंडरी साइड के साथ ही लोड कनेक्ट किया जाता है, और लेकिन इसका सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि वो इलेक्ट्रिकल लोडिंग होती है जो वहाँ पे हो रही होती है. वेयर अगर हम इंडक्शन मोटर में करेंगे तो यहाँ पर जो है वो रोटर के साथ ही लोड कनेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये लोड जो होता है वो मैकेनिकल इन नेचर होता है.
ठीक है, ये ज़रा सा थोड़ा सा इंडस्ट्री इसको समझना चाहिएगा। अच्छा, लेकिन इसमें जो एक कॉमन चीज़ है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आप ये कहेंगे कि भाई क्यों आप इंडक्शन मोटर को जो है वो ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अब मैं करने जा रहा हूँ। दोनों जो है इलेक्ट्रिकली, इन दोनों वाइंडिंग्स जो होती हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड एंड सिमिलर इज द केस विद स्टेटर एंड रोटर, दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। इन दोनों के दरमियान भी कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ट्रांसफार्मर के अंदर भी जो प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है वो म्यूचुअल इंडक्शन का है और उसके अंदर जो टाइप यूज की जाती है दैट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। और सिमिलरली इज द केस विद द इंडक्शन मोटर, वहां पर भी उसके अंदर इंडक्शन होती है और उसके अंदर जो टाइप यूज की जाती है वो म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपके पास दो वाइंडिंग्स हैं, लेट मी मेक देम, लेट सपोज दो वाइंडिंग्स हैं आपके पास, एक ये वाइंडिंग 1 है और बीच में आपके पास कोई कोर है या एयर है लेट सपोज, तो ये आपके पास दूसरी वाइंडिंग है, सेकेंड वाइंडिंग है। तो अगर आप इस पे अप्लाई करते हैं, कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और एज ए रिजल्ट इसके अंदर कोई करंट फ्लो करता है लेट सपोज दिस, तो ये क्या करेगा, ये फ्लक्स क्रिएट करेगा। वो फ्लक्स जो है इस कोर के थ्रू जो है लिंक हो जाएगा इस सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ और इस दूसरी वाइंडिंग के अंदर ये है आपके पास कोई वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इस वोल्टेज के नतीजे में अगर इसका सर्किट कंप्लीट कर दिया जाए तो एक करंट चलना शुरू हो जाएगा। दिस इज बेसिकली द म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल एज सिंपल एज पॉसिबल। ये बड़े सिंपल वर्ड्स में जो है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो वो ये है, ठीक है। तो ये थोड़ा सी वजाहत हो गई। इसी की बुनियाद पर हम लोग जो है ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है उसको एज ए स्टार्ट पॉइंट करेंगे हमारी अपनी इस डेवलपमेंट के अंदर। ये हमारा लेट्स सपोज स्टार्ट पॉइंट है, दिस इज अवर स्टार्ट पॉइंट एंड वी विल सी के हाउ वी गोइंग टू यूज दिस स्टार्ट पॉइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ऑब्वियसली अगर इसी डेवलपमेंट को हम फर्दर आगे लेके चलना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि यार ऑब्वियसली वो डिफरेंसेस भी तो होंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास जो है जो ये दोनों जो मशीन्स हैं यानी ट्रांसफार्मर और जो आपके पास इंडक्शन मोटर है इसके दरमियान डिफरेंसेस भी हैं। तो वो क्या है? सो लेट अस बेसिकली सी टू दिस थिंग कि वो डिफरेंसेस क्या हैं और यही डिफरेंसेस जो हैं हमें हमारी इस डिस्कशन को नेक्स्ट हमारे सेक्शन पे लेके जाएंगे और नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। डिफरेंसेस जैसे मैं पहले भी बता रहा था आपको कि पहला डिफरेंस तो ये है कि जी इसके अंदर इलेक्ट्रिकल लोडिंग होती है आपके पास, आप इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट करते हैं, वेयर एज हेयर बेसिकली आप मैकेनिकल लोड कनेक्ट करते हैं। ये पहली चीज है, आपको इस चीज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इस मैकेनिकल लोड को इक्विवेलेंट सर्किट में। इक्विवेलेंट सर्किट अप्रोच जो है ये नेटवर्क एनालिसिस से आई है और इक्विवेलेंट सर्किट अप्रोच में ये होता है कि आप किसी भी चीज को, किसी डिवाइस को, किसी मशीन को आप उसको एक सर्किट के साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस के अंदर अगर आप दें तो जो सर्किट पैरामीटर्स होते हैं वो नॉर्मली रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड सोर्सेज में आपके पास करंट सोर्सेज भी होते हैं और वोल्टेज सोर्सेज भी होते हैं, तो इंडिपेंडेंट भी होते हैं और डिपेंडेंट भी होते हैं। इनकी मदद से आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और सारी इलेक्ट्रिकल थ्योरी इसके साथ आप डेवलप करते हैं। तो ये अगर आप मैकेनिकल लोड ले रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट जो है वो डिवाइस करें और उसको जो है अपने सर्किट के अंदर ऐड करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये इस टॉपिक के अंदर यूज़ होगा। डिफरेंसेस में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके पास ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है। क्या पता है, आप एसी अप्लाई करते हैं और उसके नतीजे में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का होता है। लेकिन अगर आप इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो वहाँ पे आप 3 फेज एसी अप्लाई करते हैं और यहाँ पे जो होता है वो रोटेटिंग फ्लक्स होता है आपके पास। ये सबसे बड़ा जो है ना, ये बड़ा एक और प्राइमरी डिफरेंस में से आता है कि रोटेटिंग फ्लक्स होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखिए कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको बताया था ऊपर भी कि आपके पास कोई कॉमन कोर होती है और ये अमूमन फेरोमैग्नेटिक कोर जो है वो हम यूज करते हैं, फेरोमैग्नेटिक कोर। लेकिन अगर मैं ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर की बात करूं तो वहां पे हम एयर गैप यूज करते हैं। अब ये दोनों जो है ना ये बड़ी डिफरेंट चीजें हैं, क्योंकि आपके पास जो फेरोमैग्नेटिक कोर होती है ना इसकी परमेबिलिटी बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है,
वेयरएज जो एयर गैप होती है इसकी परमेबिलिटी बड़ी लो होती है। तो अब इसके नतीजे में क्या होगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो है जो रिलक्टेंस होगी वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो और जो एयर गैप है उसकी जो रिलक्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ये रिलक्टेंस क्या है? रिलक्टेंस इज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ या टू द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो रेजिस्टेंस ऑफर मैग्नेटिक कोर कर रही होती है वो बहुत कम रेजिस्टेंस करती है, मैग्नेटिक कोर देती है, जबकि एयर गैप जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है फॉर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये थोड़ा सा आपको जहन में रखना है, क्योंकि ये भी जो है जो आप रिएक्टेंसेस ले रहे होते हैं वो उसके साथ ये इन्वॉल्व हो जाएगा और उसके साथ रिलेट हो जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो मैं समझता हूँ कि प्राइमरीली हमारी जो नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो आपके पास ट्रांसफार्मर है ये एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस मीन्स कि इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों स्टैटिक होती हैं, उनके दरमियान कोई मोशन नहीं होता। देयर इज नो मोशन इन बिटवीन दीज टू। वेयर एज अगर हम बात करें जो हमारा है इंडक्शन मोटर, उसकी बात करें तो इंडक्शन मोटर जो है वो डायनेमिक है, डायनेमिक डिवाइस है। और डायनेमिक डिवाइस का मतलब क्या? असल में इसका स्टेटर जो है वो तो स्टैटिक ही होता है, तो मैं भी मानता हूँ कि स्टैटिक होता है, लेकिन जो उसका रोटर होता है वो रोटेटिंग नेचर का होता है या रनिंग करता है, यानी वो मूव करता है। जब वो मूव करता है तो आपके पास एक रिलेटिव मोशन क्रिएट हो जाता है, रिलेटिव मोशन क्रिएट हो जाता है बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। और ये जो रिलेटिव मोशन क्रिएट होता है ये जो है आपके इंडक्शन के फिनोमेने के ऊपर असरअंदाज होता है। आप कहेंगे कैसे होता है? देखें, लेट मी हाईलाइट दैट थिंग। मैंने अगर आपको याद हो, बिल्कुल शुरू में मैंने एक प्रिंसिपली आपसे बात की थी कि जब भी हम प्रिंसिपली बात करते हैं इन दी इलेक्ट्रिकल मशीन्स तो हमारे पास एक दो चीज़ें होती हैं। हमारे पास होता है कंडक्टर और हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड। और इन दोनों के दरमियान जो है हमें रिलेटिव मोशन चाहिए होता है फॉर इंडक्शन पर्पजेस। क्यों रिलेटिव मोशन चाहिए होता है? वाई? बिकॉज जो आपका जो फेरो लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म है, दैट इज द फेरोमैग्नेटिक फैराडेज लॉ जो है वो कहता है माइनस एंड डी फाई बाय डी टी। सो देयर शुड बी अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो लिंकिंग फ्लक्स है उसके दरमियान कोई रेट ऑफ चेंज होना चाहिए, वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा। सो इंडक्शन के लिए आपके दरमियान इसके अंदर तो ये जो रिलेटिव मोशन क्रिएट करता है ये इंडक्शन को इफेक्ट करने लगता है। जब हम ट्रांसफार्मर में बात करते हैं ना तो इनके दरमियान कोई मोशन नहीं होता। तो जो इंडक्शन होती है ना वो एक बेसिकली सिर्फ इस वजह से होती है कि जो आपने वोल्टेज अप्लाई की उसकी ऑल्टरनेटिंग नेचर की वजह से इंडक्शन हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो आपके पास फ्लक्स है वो रोटेटिंग नेचर का है, वो रोटेट करता है, वो मूव करता है और उसकी स्पीड होती है और वो जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ ns। इनिशियली जब आपकी आपकी मोटर स्टार्ट होती है तो वो रेस्ट पे होती है, तो उस वक्त जो आपके पास डिफरेंस ऑफ स्पीड होता है वो ns के बराबर होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका रोटर रोटेट करना स्टार्ट करता है और रोटर की जो स्पीड है, लेट अस सपोज रोटर की स्पीड nr है, वो इंक्रीज करना शुरू करती है। ये जो रिलेटिव मोशन है इनके दरमियान ये बदलना शुरू होता है, ये चेंज होना शुरू होता है। और यही रिलेटिव मोशन जो है ये इस इंडक्शन के फिनोमेने पे इफेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। सो लेट अस बेसिकली डिवाइस ए क्वांटिटी कि जो इस रिलेटिव मोशन को डिफाइन करे और दैट टेक्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप। ठीक है, ये हमें स्लिप के कॉन्सेप्ट पे ले जाता है। सो लेट अस सी दैट की कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप क्या है। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप। अब स्लिप के अंदर जो है ना कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली स्लिप जो है वो दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस है। एक तो आपके पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि स्टेटर ने डेवलप की है उसकी स्पीड, और जो आपकी रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड, या रोटर की स्पीड लेट्स सपोज अगर हम सिंपली लें तो रोटर की स्पीड। लेकिन आप कहेंगे कि यार रोटर की फील्ड क्या होती है और स्टेटर की फील्ड क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरीली अगर मैं आपको बता रहा हूँ
एसी मशीन्स और 3 फेज एसी मशीन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप्स की मशीन्स होती हैं, एक होती है इंडक्शन मशीन्स और एक होती हैं सिंक्रोनस मशीन्स। प्रीवियसली जब हमने सिंक्रोनस मशीन्स की भी बात की थी तो वहाँ पर भी मैंने ये हाईलाइट किया था कि ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी होता है। यहाँ पर भी देखिए इंडक्शन मोटर के अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है जो कि रोटेटिंग नेचर की है और एक रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि रोटर रोटेट करेगा तो वो भी ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी रोटेट करेगी। और प्रिंसिपल जो जो मैंने जो प्रीवियस वीडियो की थी प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर की, तो मैंने बताया था कि रोटर रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, आप उस वीडियो को जाके देख भी सकते हैं। तो आपके पास ये आएगा कि अच्छा ये होती किस तरीके से। लेट मी बेसिकली हाईलाइट दिस आइडिया कि ये किस तरीके से जो है ये बनती है। लेट सपोज ये हमारे पास जो है ये जो है हमारा ये स्टेटर है। सो लेट अस सी दिस इज द स्टेटर, और इस स्टेटर के अंदर हमने क्या किया है कि ऑब्वियसली हमने कोई पावर सप्लाई दी होगी। लेट सपोज इस इन सेक्शंस को हमने पावर सप्लाई दी, इधर फेज ए लगाया, इधर बी लगाया और सी लगाया। इसके नतीजे में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई जो कि एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ये रोटेट कर रही है। सिमिलरली इंडक्शन जब होती है, क्योंकि देखें जब इंडक्शन किस तरह होगी, इंडक्शन होगी रोटर के कंडक्टर से। अब ये रोटर के कंडक्टर जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस हैं, ये फील्ड रोटेट कर रही है, तो ये ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान जो है वो एक रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करता है। इसके नतीजे में क्या होगा कि इंड्यूस ईएमएफ होगी इन कंडक्टर्स के अंदर, और ये कंडक्टर्स क्योंकि ये स्क्विरल केज कंस्ट्रक्शन है तो ये कंडक्टर्स जो हैं दे आर क्लोज शॉर्ट सर्किटेड, ये शॉर्ट सर्किट होते हैं। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो ऑब्वियसली सर्किट कंप्लीट होगा एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट करंट्स फ्लो करना शुरू करेंगे। तो जब करंट्स फ्लो करेंगे तो इन सर्किट ये जो रोटर के कंडक्टर्स हैं इनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी और दिस इज कॉल्ड बी आर। टू स्टार्ट विद ये जो होगा ये रेस्ट पे होगा या लेट सपोज स्टैंड स्टिल पे होगा। ये वर्ड्स मार्क कर लीजिएगा, ये हम आगे यूज करेंगे। तो लेट सपोज अगर ये स्टैंड स्टिल पे होगा तो एन आर जो होगी वो 0 होगी। जब इनके अंदर इंडक्शन होगी और मोटर स्टार्ट करने रोटेट करना शुरू करेगी तो एन आर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, एन आर की वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसके नतीजे में क्या होगा, जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन दी एन एस, इसकी जो स्पीड है वो एन एस, और जो एन आर है, वी नीड टू बेसिकली सम हाउ प्रोवाइड ए पैरामीटर के जो इसको मैयर कर सके या जिसके बारे में हम ये कहें जो इन दोनों को रिलेट कर सके। And that takes us to the topic of slip. So let us basically define the slip. Slip को अब हम define करेंगे and हम देखेंगे कि भाई slip होती क्या है और slip को किस तरीके से यूज किया जा सकता है इंडक्शन मोटर के अंदर। So let me basically take you to the topic of, हम यहाँ पे ले जाते हैं slip पे और मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ slip and let us basically define it. तो अगर मैं स्लिप को डिफाइन करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो स्लिप जो है बेसिकली प्राइमरीली जो है इट बेसिकली प्रोवाइड्स अस ए मेजर के रिलेटिव स्पीड क्या है बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें जो स्लिप है वो मेजर प्रोवाइड करती है कि जी इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंस between the speed of stator field, तो ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड होती है वो ns होती है जिसको हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ें अगर आपको इशू करें तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके टॉपिक को अच्छे तरीके से देखें, वो आपको ये सिंक्रोनस स्पीड ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे बहुत डिटेल से मिल जाएंगी। एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ
रोटर, रोटर की एक्चुअल स्पीड, लेट सपोज हम इसको एन आर कह देते हैं, इको एन एस कह दिया, एन आर इज नोन एज स्लिप। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, लेट सपोज आई रिप्रेजेंटेड विद ए लेटर एस, तो एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर। और ऑब्वियसली अगर मैं इसको दोनों जो स्पीड्स चूंकि आरपीएम में है, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा स्पीड का, वो स्लिप का जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आरपीएम में होगा। लेकिन हाउएवर नॉर्मली वी डू नॉट रिप्रेजेंट स्लिप इन आरपीएम्स, रादर हम इसको या तो एज ए रेशो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं या फिर एज ए परसेंटेज। और अगर हम इसको इस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये बड़ी यूजफुल बन जाती है और हेल्प्स इन अस इन बेसिकली इन डेवलपिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो अगर हम इसको एज ए रेशो ले लें, एज ए रेशो, तो हम करेंगे क्या कि हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देंगे, एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर and we will divide it by ns. So this is basically the definition of slip. ठीक है, तो ये हो गया स्लिप का। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अच्छा यार, what will be the values of slip, what will be the values of slip, यानी क्या होगा कि जी स्लिप की वैल्यूज की रेंज क्या है। ठीक है, कि अगर आपकी स्लिप की वैल्यू जो है वो क्या होगी। अब रेंज के लिए ऑब्वियसली क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि स्पीड की वैल्यूज क्या होंगी। तो अगर रोटर की हम बात करें एन आर की, तो इसकी जो स्पीड है समवेयर फ्रॉम जीरो से लेके स्टार्ट करेगा जब ये रेस्ट पे होगा, या लेट सपोज हम इसको स्टैंड स्टिल कह लें। ये दोनों चीज़ें जो है हम याद रखिएगा, हम इसको यूज़ करेंगे। और ये स्पीड इंक्रीज होके जा सकती है मैक्सिमम एन एस, जिसको हम लेट सपोज सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। जब ये रनिंग कंडीशन में आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा सकती है, सिंक्रोनस स्पीड तक, रोटेटिंग। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इंडक्शन मोटर रोटर कैन नेवर रन ऑन सिंक्रोनस स्पीड। तो दिस इज इम्पॉसिबल फॉर अ रोटर टू अचीव। लेकिन बहरहाल हमने उसको एज ए एक्सट्रीम केस लिया। तो इसका मतलब ये कि एनआर की मैक्सिमम जीरो वैल्यू ये है और ये, तो लेट अस बेसिकली फाइंड द रेंज। इसका मतलब अगर हम एनआर की वैल्यू इधर जो है वो जीरो के इक्विवेलेंट कर लें और लेट सपोज एनआर की वैल्यू एनएस कर लें। सो इस फॉर्मूले में हम ये दोनों प्लेस करके देखते हैं। एस इज इक्वल टू एन एस माइनस जीरो ओवर एन एस एंड दिस इज इक्वल टू एन एस ओवर एन एस। सो एस इज इक्वल टू वन, तो स्लिप की वैल्यू आ गई वन। और अगर मैं यहाँ पे इसी फॉर्मूले के अंदर एन एस माइनस एन एस ओवर एन एस, दिस इज इक्वल टू जीरो ओवर एन एस एंड एस इज इक्वल टू जीरो। सो ये एक्सट्रीम्स निकाल ली हमने कि जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये कि जो स्लिप है it will basically lie in between these two values. For standstill, or rest, s will be equal to 1, or for a running condition reaching its maximum value to ns, slip will be equal to। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जब रोटर रोटेट करना शुरू करेगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी हत्ता कि आपका रोटर की जो स्पीड है इट विल इवेंचुअली रीच द एनएस। तो इसका मतलब क्या है कि हाई वैल्यूज ऑफ स्लिप विल एग्जिस्ट व्हेन द रोटर इज वेरी स्लो और एट लो स्पीड्स। ठीक है, हाई वैल्यू ऑफ स्लिप will exist when the rotor will be at low speeds, or very low values of slip will exist when rotor will be at a very high speed। ठीक है, अब देखें इसके साथ में ये थोड़ा सा ये हाईलाइट कर देता हूं। यानी लो स्पीड जो होगी, जब आपके पास लो स्पीड होगी तो आपकी स्लिप बहुत हाई होगी, हाई स्लिप्स, स्लिप की वैल्यू। और जब आप हाई स्पीड्स पे होंगे तो लो स्लिप्स वैल्यूज। ये जो होती है ना, ये प्राइमरीली ये रिलेशनशिप अगर आपको समझ आ गई तो फिर बड़ा आसान हो जाता है इंडक्शन मोटर के बारे में डिफरेंट चीज़ों को समझना या रिलेशनशिप्स डेवलप करना।
कि होता ये है कि ये अक्सर जो है ना स्लिप जो है काफ़ी इश्यूज क्रिएट कर देती है और वो आता है। तो इसका मतलब ये कि मैंने जैसे आपको पहले हाईलाइट किया था कि इंडक्शन जो है वो प्रोसेस जो है वो रोटर की मोशन के साथ इफेक्ट होगा, और उसके लिए हमने जो एक चीज़ डेवलप की है दैट इज़ दी स्लिप। अब कौन सी चीज़ें हैं जब रोटर चलना शुरू करता है या मूव करना शुरू करता है तो रोटर के कौन से पैरामीटर्स हैं जो इफेक्ट होते हैं ड्यू टू दी मोशन ऑफ रोटर। तो लेट अस बेसिकली हैव ए लुक एट दोज पैरामीटर्स एज वेल। तो जब हमारा रोटर चलेगा तो स्लिप जो है वो इफेक्ट करेगी, यानी जो रोटर की, मैंने यहाँ पे बताया कि रोटर की जो मोशन है ना वो स्लिप से क्वांटिफाई कर रही है, और इसीलिए मैंने इसको उस रोटर के पैरामीटर्स को स्लिप के साथ रिलेट करते हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जी? सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो इसका इफेक्ट होगा वो रोटर की फ्रीक्वेंसी है। देन इंड्यूस ईएमएफ जो कि रोटर के अंदर हो रही है, इंडक्शन की वजह से हो रही है। देन द इम्पिडेंस ऑफ रोटर, दिस विल बी इफेक्टिव। इम्पिडेंस ऑफ रोटर इसलिए मैंने बताया कि रोटर के अंदर जो है आपके पास रेजिस्टिव पार्ट भी है और रिएक्टिव पार्ट भी है। रेजिस्टिव पार्ट तो ऑब्वियसली डजेंट हैव एनी इशू विद द फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो रिएक्टिव पार्ट है दैट विल हैव ए इफेक्ट। सो इसलिए हमने यहाँ पे इम्पिडेंस काउंट की है। और जब आपके पास इम्पिडेंस आ गई, इंड्यूस ईएमएफ आ गई, सो ऑब्वियसली यू विल रीच टू ए पॉइंट के जहाँ पे करंट जो है रोटर का वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड व्हेन द करंट ऑफ द रोटर विल बी इंपॉर्टेंट, और आपके पास क्योंकि सर्किट के अंदर रिएक्टेंस भी है, तो पावर फैक्टर ऑफ रोटर भी जो है वो इन्वॉल्विंग हो जाएगा। तो लेट अस बेसिकली टेक वन बाय वन दीज पैरामीटर्स एंड सी कि ये किस तरीके से इफेक्ट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी से। हम देख रहे ये हैं कि जो हमारे पास स्लिप है उसका इफेक्ट जो है वो रोटर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर की बात करें तो मैंने जैसे यहाँ पर पहले बताया कि प्राइमरीली स्पीकिंग जब आप रेस्ट पे होंगे, सबसे पहले हम करेंगे एट स्टैंड स्टिल। जब आप स्टैंड स्टिल पे होंगे तो स्लिप जो होती है वो 1 होती है, और इसका मतलब ये है कि स्लिप अगर 1 है इसका मतलब ये है कि एन एस माइनस एन आर जो है दैट इज मैक्सिमम। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम स्लिप ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एट स्टैंड स्टिल आपकी स्लिप जो होगी वो 1 होगी, और ये रिप्रेजेंट करती है कि जो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है। अगर ये मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली इट इज बेसिकली इक्वल टू एन एस, and if it is equal to ns तो then we have the formula 120f over p। और अगर मैं इससे लेट सपोज मैं इसको fs कह देता हूँ, तो मैं अगर fs की वैल्यू निकालता हूँ इस केस के अंदर, तो वो तो बेसिकली निकलेगी ns ओवर 120 ओवर p, ये निकलेगी। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एग्जिस्ट करती है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो बेसिकली आपकी सिंक्रोनस स्पीड के साथ रिलेटेड है, और ये आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो 3 फेज सप्लाई आ रही है ये असल में उसकी फ्रीक्वेंसी है जो इसके साथ रिलेट कर जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ये आ रही है इसको। ठीक है, अच्छा जब आपका रोटर जो है वो रनिंग कंडीशन में है, रनिंग, जब रोटर विल स्टार्ट रनिंग तो अब क्या होगा जी? अब थोड़ा सा इशू जो है वो चेंज हो जाएगा। होगा ये कि जो अब रोटर की फ्रीक्वेंसी है, अब इस वक्त जो है ना रोटर की फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो एफ एस, यानी कि वो सिंक्रोनस स्पीड की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ रिलेट कर जाती है। उस वक्त आपकी रोटर की फ्रीक्वेंसी और आपकी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होती है, दे आर एग्जैक्टली इक्वल। लेकिन जब ये रोटर रनिंग करना शुरू करेगा तो फिर जो आपकी रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी रिलेटिव स्पीड पे। इन दोनों के दरमियान जो रिलेटिव स्पीड है और डिवाइड किससे हो रहे होंगे, वही 120 ओवर बी। वो ये फैक्टर, ये देखें यहाँ पे स्पीड थी ना, इससे मैंने ये डिवाइड किया है। पहले स्पीड मैक्सिमम थी, अब रिलेटिव स्पीड, तो ये क्या आ जाएगा एन एस माइनस एन आर ओवर 120 टी, ये आ गई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ठीक हो गई, ये थोड़ा देखते रहिएगा साथ साथ। अच्छा,
अब इसके साथ मैं एक छोटा सा जो पहले ही फार्मूला लिख चुका हूँ, हम थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं। स्लिप का फार्मूला क्या है? स्लिप जो है वो है NS माइनस NR ओवर NS। और मैं अगर इसके अंदर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करूं तो आई कैन राइट इट एज NS माइनस NR इज इक्वल टू S ऑफ NFS। ठीक है जी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि वी आर ट्राइंग टू बेसिकली यूज दिस वैल्यूज इन दी अपर, जो हमने डिफिनीशन की है उसके अंदर हम इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक होगी जी। अब ये जो है NS माइनस NR, अगर मैं NS की वैल्यू में ये रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा NS माइनस NR इज इक्वल टू S इंटू 120 F ऑफ S ओवर P। ठीक हो गई जी चीज, ये आपको समझ आ रही है? इसका मतलब ये कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू, लेट्स सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, तो मैं इक्वेशन 2 में ये वैल्यू जो है अगर इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दूं तो फिर क्या होगा? ठीक है ना। तो लेट अस सी दैट। ठीक है, ये बड़ा सिस्टमैटिक है और अगर आप इसको साथ साथ लेके चल रहे हैं तो बड़ा आसान हो जाता है कि इसको समझा जा सकता है। सो लेट अस बेसिकली रिप्लेस दैट वैल्यू। हम उसे करेंगे रिप्लेस, तो हमारे पास आ जाएगा कि जो एफ आर की वैल्यू थी इसके अंदर आ जाएगा S 120 FS ओवर P और ये आ जाएगा 120 ओवर P। इसका हमें नजर आ रहा है कि ये जो 120 ओवर P का फैक्टर है ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और वी विल एंड अप विद एफ आर इज इक्वल टू S ऑफ S। दैट्स इट। So rotor frequency is equal to slip multiplied by the stator frequency. This will be the condition। और ये कब होगा? जब आपकी मोटर जो है वो इन रनिंग कंडीशन, जब स्टैंड स्टिल पे थी तो दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल थी और जब रनिंग में आई तो ये हो गया। इसका मतलब ये कि अगर मैं यहां पे लिख लूं फ्रीक्वेंसी के लिए, लेट सपोज मैं लिख लूं तो फॉर फ्रीक्वेंसी एट स्टैंड स्टिल और एट रनिंग, तो इन दोनों कंडीशन में अगर मैं रोटर की फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं तो एट स्टैंड स्टिल आपकी रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। एट रनिंग रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप मल्टीप्लाइड बाय द स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है ना ये चेंज आ गया। और ये चीज जो फ्रीक्वेंसी इतना बेसिक पैरामीटर है ना रोटर के लिए कि वो इफेक्ट करता है बाकी तमाम पैरामीटर्स को जो मैंने अभी आपको हाईलाइट किए हुए थे और वो आपको इसमें नजर आ रहा है। देखिए, इंड्यूस ईएमएफ पे भी इफेक्ट करेगा, इंपेडेंस ऑफ रोटर पे भी इफेक्ट करेगा, करंट इन रोटर जो है उसको भी इफेक्ट करेगा और पावर फैक्टर ऑफ रोटर को भी इफेक्ट करेगा। तो फ्रीक्वेंसी इज द बेसिक एलिमेंट जो सारी चीजों के ऊपर इफेक्ट करेगा। ठीक है ना। तो ये जरा सा हमारी जो है ये डिस्कशन जो है ना अब बिल्कुल सही जा रही है और अगर आप बिल्कुल अगर कनेक्टेड हैं तो ये बड़ा आपको इसको डेवलपमेंट जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि अच्छा यार ये कैसे चलता है। सो लेट अस बेसिकली मूव ऑन टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर, लेट अस सपोज हम इसको E2 कह देते हैं। अब चूंकि आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो ये मसला जरा सा यहाँ पर गंभीर है। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास जो इंडक्शन की इक्वेशन थी फॉर ट्रांसफार्मर, हम वही यूज करने की कोशिश करेंगे फॉर ट्रांसफार्मर। इंडक्शन के लिए जो आपने उधर इक्वेशन यूज कर रही थी, प्राइमरी में इंडक्शन जो इंड्यूस हो रही होती है वो 4.144 एफ ऑफ एस फाइव, यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है और N1 दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी साइड। ये प्राइमरी के लिए था और E2 दैट इज द फॉर सेकेंडरी 4.4 और अगेन यहाँ पर हम ले लेंगे चूंकि ये अब प्राइमरी थी और ये यहाँ पे चूंकि स्टेटर है तो एफ आर 5 के N1 N2।
ये अब रोटर होगा, और ये बेसिकली हमने सेकेंडरी के लिए, तो ये रोटर की हो गई। अब अगर मैं एट स्टैंड स्टिल डिफाइन करूं, एट स्टैंड स्टिल देखूं, तो मेरे पास क्या होगा, स्टैंड स्टैंड स्टिल। तो अगर मैं इन दोनों की रेशियो ले लूं, लेट्स सपोज E1 ओवर E2 दैट इज इक्वल टू N1 ओवर N2, क्योंकि ये तमाम चीजें तो यहाँ पर आप कहेंगे अच्छा यार ये FS और FR क्या हुआ। असल में स्टैंड स्टिल के ऊपर अभी आपको मैंने ऊपर बताया है कि FR इज इक्वल टू FS, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू। इसके आगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होती है बेसिकली। और अगर मैं E2 की वैल्यू लिखूं, तो E2 की वैल्यू जो है इधर के मुताबिक N2 over N1 into E1. Let us call this E2 at standstill. At standstill आपकी E2 की वैल्यू ये हो, that is the induced EMF in rotor. Simply turn ratio multiplied by the induced EMF on the stator side, उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको एट रनिंग कंडीशन में लेके जाऊं, एट रनिंग कंडीशन में जाऊं तो क्या होगा जी, अगर मैं रनिंग कंडीशन में जाता हूं, वही चीजें दोबारा लिखता हूं जी, वही मेरे पास आ गई E1 4.4 FS 5K N1, E2 आ गई मेरे पास 4.4 FR 5K N2। सो लेट मी बेसिकली अगेन टेक द रेशो। तो मेरे पास अगर मैं रेशो लेता हूँ E1 ओवर E2, अब की बार 4.4 FS 5K N1 4.4 FR 5K N2। अब FR और FS कट नहीं सकते क्योंकि दे आर नॉट इक्वल, एट स्टैंड स्टिल दे आर इक्वल, तो कट गए थे, लेकिन रनिंग में तो नहीं है वो इक्वल। तो अब ये कट जाएगा, ठीक है, ये 5 कट जाएगा, K कट जाएगा, FS और FR रह जाएगा। FS की जगह आपको पता ही है कि FS ही आ जाएगा, FS N1, लेकिन FR की जगह आएगा SFS N2। तो ये FS कटेगा और आपके पास आ जाएगा E1 ओवर E2 S, सॉरी N1 S N2। अगर मैं E2 की वैल्यू अब लूंगा इससे, तो मेरे पास आएगा E2 इज इक्वल टू N2 ओवर N1 एंड S E1। तो अगर मैं इसको गौर से देखूं, ऊपर जो मैंने निकाला है N2 ओवर N1 E जो है, दिस इज इक्वल टू E2 स्टैंड स्टिल, सो आई मे राइट इट एज E2 रनिंग। इसको लेट सपोज इसको रनिंग कर देते हैं, E2 रनिंग is equal to S slip multiplied by E2 stand still. This is very important relationship. ये जो है पूरा जो है आपका पैराडाइम जो है वो अब इस पे जाएगा, रिड्यूस EMF ही चेंज हो गई। और अगर मैं इसको अब जरा सा इसको एवेल्युएट करें, असल में बात ये होती है कि ना अगर हम इसको एवेल्युएट करें ना इस बात, इधर से हमारे जहन में आइडिया आ जाएगा, अच्छा यार फिर आगे हो क्या रहा है। तो आगे बस देखें, E2 स्टैंड स्टिल, सॉरी E2 रनिंग इज इक्वल टू S E2 स्टैंड स्टिल। अब अगर आप स्टैंड स्टिल पे हो और S इज इक्वल टू 1 हो, तो E2 रनिंग जो होगी ना, ये और E2 स्टैंड ये दोनों बराबर हो जाएंगी, ये S इज इक्वल टू 1 हो गए। उस वक्त आपकी EMF इंड्यूस EMF रोटर की जो इंड्यूस EMF होगी, रोटर की जो इंड्यूस EMF होगी वो इक्वल होगी जो आपकी इंड्यूस EMF आ रही है। लेकिन अगर आपका रोटर रोटेट करना शुरू कर दे और स्लिप इज नो लॉन्गर इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली स्लिप जो होगा वो डिक्रीज कर रही होगी, इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स S इज इक्वल टू 0, तो इंड्यूस EMF भी डिक्रीज करती चली जाएगी। जैसे जैसे रोटर की स्पीड इंक्रीज करती चली जाएगी, इंड्यूस EMF की वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी, हत्ता कि अगर जब आप सिग्नल स्पीड पे पहुंचेंगे तो इंड्यूस EMF की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है
इसका जो है रिजल्ट है। तो हमने यहाँ पर सेकंड चीज़ भी जो है वो भी कर दी कि जी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो है उसको भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। और दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंने इसकी थोड़ी सी रिलेशनशिप भी बता दी कि जो स्टैंड स्टिल पे था वो जो है आपकी रनिंग कंडीशन के साथ जो है वो आ गया। अच्छा, अब हम इसको अगर लेके चलें तो हम फर्दर जो है वो क्या कर सकते हैं वो जरा हम देख लेते हैं। फर्दर जो रोटर के पैरामीटर्स इफेक्ट होते हैं वो मैंने आपको बताया कि जो रोटर की इम्पिडेंस है वो भी इफेक्ट होती है। भाई देखिए ना, अब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो फिर वो भी इफेक्ट करेगी। सो लेट अस बेसिकली स्टार्ट विद द रोटर इम्पिडेंस। पहली बात तो ये कि रोटर इम्पिडेंस स्टैंड स्टिल पे क्या होगी। सबसे सबसे पहले जो है स्टैंड स्टिल कर लेते हैं। तो स्टैंड स्टिल पे आपके पास जो है इंड्यूस ईएमएफ तो वही होती है जो ट्रांसफार्मर में होती है। इंड्यूस ईएमएफ पर फेज जो आपके पास आ रही होती है इन रोटर, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होती है स्टैंड स्टिल पे। अगर रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, तो रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ना फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये भी वही रहेगी पर फेज। स्टैंड स्टिल पे बात कर रहा हूँ R2। अगर स्टैंड स्टिल पे मैं रोटर वाइंडिंग रिएक्टेंस की बात करूं, रोटर वाइंडिंग रिएक्टेंस, तो यहाँ पे जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगी ना इस वक्त वो एफ एस होगी। सो आई विल राइट x2 इज इक्वल टू 2 पाई एफ एस L2। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो मेरे पास रोटर वाइंडिंग की इम्पिडेंस होगी, रोटर वाइंडिंग इम्पिडेंस, ये भी यहाँ पे असल में क्योंकि इंडक्शन मोटर 3 फेज होती है तो इसलिए हम पर फेज ले रहे हैं। तो दैट इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू अंडर रूट R2 प्लस X2। तो इसके साथ स्क्वायर लगा लें। असल में ये आपकी जो है ना इम्पिडेंस की ट्राइंगल होती है। खैर ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका पावर फैक्टर होता है, यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस आती है, यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंस आती है, और हेयर यू हैव इम्पिडेंस। तो ये थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहरहाल बताना ज़रूरी था ताकि आप कनेक्टेड रहें कि अच्छा ये कोई नई चीज़ नहीं कर दी है, ठीक है। तो ये रोटर इम्पिडेंस जो है ये आ जाती है। लेकिन अगर आप रनिंग में हो, एट रनिंग कंडीशन हो, तो इंड्यूस ईएमएफ जो है इन रोटर जो होगी वो SE2 हो। तो इट विल स्टार्ट टू डिपेंड ऑन द स्लिप। इसी तरीके से जो रोटर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगी वो तो सेम रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर जो है कोई इफेक्ट नहीं है फ्रीक्वेंसी का या स्लिप का। लेकिन अगर आप रोटर की वाइंडिंग की रिएक्टेंस की बात करेंगे, रोटर वाइंडिंग रिएक्टेंस पर फेज, तो यहाँ पे इशू चेंज हो जाएगा। x2 इज इक्वल टू 2 पाई, अब आपके पास आएगा FRL2। और FR जो है वो आपको पता है कि 2 पाई SFS हो जाएगा L2। और अगर मैं इसको सिंपली लिखूंगा तो ये SX2 बन जाएगा। यहाँ पे जो है स्लिप का फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा x2 के साथ। और जब अगर इसकी इम्पिडेंस निकालूंगा पर फेज, तो वो हो जाएगी Z2R। लेट्स सपोज ये रनिंग के लिए जो इम्पिडेंस होती है अंडर रूट R2 स्क्वेयर प्लस SX2 होल स्क्वेयर। ये अब यहाँ पे आ गया, ये फैक्टर चेंज हो गया। तो इम्पीडेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। हमने देखा कि जिस वक्त आप एट स्टैंड स्टिल थे उस वक्त आपकी रोटर की जो रेजिस्टेंस इम्पीडेंस थी वो सेम ही थी जो पहले थी, हो गई थी। लेकिन जब आप रनिंग कंडीशन में आएंगे तो स्लिप का फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा आपकी रिएक्टेंस के साथ, और ये आपकी इम्पीडेंस को चेंज कर देगा। और अगर आपकी इम्पीडेंस चेंज हो गई है तो ऑब्वियसली इट विल हैव इफेक्ट ऑन द रोटर करंट। तो नेक्स्ट चीज जो है वो आपका रोटर करंट है। अब स्टैंड स्टिल पे अगर हम देखें तो स्टैंड स्टिल पे रोटर करंट जो है I2 ले लेते हैं स्टैंड स्टिल के ऊपर, दैट इज इक्वल टू सिंपल E2 ओवर अंडर रूट
और सिंपली आपने जो है इम्पीडेंस इंट्रोड्यूस कर स्टैंड से। लेकिन अगर हम रनिंग कंडीशन में हैं, लेट अस सपोज I2R, तो अब E2 नहीं आएगा, बल्कि वी विल हैव SE2 अंडर रूट R2 स्क्वेयर प्लस SX2 होल स्क्वेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस जो आपके पास ये जो रिजल्ट आता है ये सबसे है, ठीक है ना। ये आपने अब देखना है कि भाई क्यों वही इतना अहम है। ये चीज़ जो है ना ये हमारे इसको बड़ा इफेक्ट करेगी। और हम जब रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो उसके अंदर इसका जो है ऑब्वियसली इशू बन जाएगा, और वो उसके अंदर ये इसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और पैरामीटर था, मैंने चूंकि आपने अगर देखा हो इसके अंदर आखिरी जो है वो रोटर पावर फैक्टर है, उसकी भी मैंने जिक्र खैर की थी, तो मैं वहाँ पर चले जाता हूँ, उसको भी बता देता हूँ आपको। तो आगे जो है वो है रोटर पावर फैक्टर, रोटर पावर फैक्टर। तो आपको समझ आ गया किस तरीके से स्लिप ने इफेक्ट किया फ्रीक्वेंसी को, और फिर फ्रीक्वेंसी ने सारों को इफेक्ट कर दिया। तो स्टैंड स्टिल लूँ तो आपके पास जो है cos फाई टू जो है दैट इज इक्वल टू, ये रोटर का पावर फैक्टर है, दिस इज इक्वल टू R2 अंडर रूट R2 स्क्वेयर प्लस X2 स्क्वेयर। तो कहेंगे कहाँ से आ गया, तो वो बेसिकली मैंने वही जो इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाई हुई थी उसी से मैंने निकाला है। ये इसका फाई है, ये Z है, ये R2 है, ये X2 है, तो इसी से मैंने ये निकाला है। दिस इज बेस ओवर हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस, ये दे देंगे बेस जो है वो R2 है। और अगर मैं रनिंग में लूंगा, एट रनिंग, ये जब रोटर रन कर रहा होगा, तो लेट्स सिर्फ cos फाई टू R ले लेता हूँ, तो R2 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो R2 स्क्वेयर SX2 के अंदर स्लिप का फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा, और ये स्लिप का फैक्टर जो है गोइंग टू बेसिकली चेंज द पावर फैक्टर व्हेन द रोटर विल स्टार्ट टू रन, ठीक है ना। इस केस में आपका पावर फैक्टर डिफरेंट होगा, लेकिन व्हेन यू विल स्टार्ट टू रन तो आपका पावर फैक्टर जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये स्लिप जैसे जैसे कम होती जाएगी तो ये जो रिएक्टिव पार्ट है ये कम होता जाएगा, और जब आप बिल्कुल आपकी जो स्लिप है वो जीरो के करीब, यानी आप नो लोड पे चल रहे होंगे ना, तो आपका रिएक्टिव पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है, वो रहता ही नहीं, सिर्फ रेजिस्टिव पार्ट रह जाता है, और पावर फैक्टर जो है वो नियरली आपका जो है इट बिकम्स वेरी नियरली इक्वल टू रेजिस्टेंस। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ी इंसाइट है। only by developing equivalent circuit of induction motor you start to getting insights into the induction motor performance, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा देखते रहिएगा। जैसे जैसे आप लोडिंग करते हैं ना, तो इंडक्टिव मोटर जो है ना वो इंडक्शन मोटर जो है उसके में इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज करती चली जाती है, तो जो उसकी मैकेनिकल लोडिंग है वो उसका इवन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर चेंज कर रही होती है। जैसे बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको पहले मैंने I2 का दिया था स्टैंड स्टिल पे E2 ओवर अंडर रूट R2 स्क्वेयर प्लस X2। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहूँ तो बड़ा सिंपल है कि इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके ऊपर जो है मेरे पास कोई E2 आएगी, और अगर मेरे पास सर्किट कंप्लीट है तो मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंस है। तो एज ए रिजल्ट इसके अंदर कोई I2 करंट चलेगा, R2, और ये X2 हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज रन कर रही हो तो मेरे पास जो है ये R2 है, और ये जो है ये देखें SX2 R2 प्लस माइनस SE2, जब ये रन कर रही होगी तो यहाँ पे मेरे पास आएगा I2 करंट आ रहा, ये जो है ये इसका सर्किट आएगा रोटर का। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारे पास करंट के लिए एक्सप्रेशन बनी थी I2 इज इक्वल टू SE2 ओवर अंडर रूट R2 स्क्वेयर प्लस X2 होल स्क्वेयर। तो अगर मैं ये S कॉमन ले लूँ आउटसाइड तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा E2
अंडर रूट R2 स्क्वेयर ओवर S, ठीक है, प्लस x2 होल स्क्वेयर। यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो मेरे पास इधर, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये आ गया प्लस माइनस V2, इधर आ गया इंडक्टेंस और इधर आ गई रेजिस्टेंस, और ये चला गया इस तरह। तो R2 ओवर S, ये x2, ये बन गया इक्वेशन, यहाँ भी I2। तो जो रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है, इट विल बी गेट अपडेटेड, और वो ये बन जाएगा ये। इसी में अगर हम मैकेनिकल लोडिंग का इफेक्ट ऐड करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे कि एक रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, दैट इज बेसिकली R2 1 ओवर S माइनस 1। ये हम इस सर्किट के अंदर ऐड कर देंगे और हमारे पास जो है अपडेटेड इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा फॉर द रोटर। वो क्या होगा, लेट मी मेक दिस वन। यहाँ पे आ जाएगा R2, इधर आ जाएगा x2, और यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस आएगी जो कि वेरिएबल नेचर की होगी, एंड दिस इज इक्वल टू R2 1 ओवर S माइनस। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, अपडेटेड इक्विवेलेंट सर्किट होगा इसका, रोटर का। और इन तमाम पैरामीटर्स को जब हमने अपडेट किया तो हमारे पास आ गया अपडेटेड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर, ठीक है ना। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो जो हमने लिया था सर्किट, वो हमने लिया था ये था हमारा ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने स्टार्ट में लिया था। लेकिन ये तमाम डिस्कशन करने के बाद और रोटर का जो हमारा स्पेसिफिकली जो सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे हमने रोटर के तौर पे ली हुई है, उसका सर्किट अपडेट करने के बाद जो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, let us basically made that equivalent circuit of induction motor। और फिर हम चलते हैं इसको, तो let me basically have a new sheet। हम आगे हैं। अब अगर मैं अपनी सीक्वेंस देखूं तो नाउ अपडेट कर लिया मैंने रोटर का सर्किट। अब हम इसको इंडक्शन मोटर के जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसको स्टार्ट करें। तो इसमें स्टेटर साइड पे जो है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अच्छा, स्टेटर की जो साइड है ना वो तो सेम ही रहती है जैसे होती है, यानी कि यहाँ पे लेट सपोज हम यहाँ पे कोई ये तो पर फेज में बना रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास जो है ये 3 फेज होती है। यहाँ पे बस R1 आ जाएगा, X1 आ जाएगा, इधर आपके पास जो है लॉसेस जो आपके पास होते हैं, कोर लॉसेस, वो आपने रिप्रेजेंट किए हैं, ये मैग्नेटाइजिंग लॉसेस हैं। और यहाँ पे आप जो है देखिए ये आ गया प्लस माइनस E1 आ गई जो इंड्यूस EMF ऑन द स्टेटर साइड। और इधर आपने लिया एयर गैप आ गया, ये बीच में एयर गैप आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया R2, इधर आ गया X2, और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाई है। और ये जो है ना, ये हमारी इस मैकेनिकल लोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R2 1 ओवर S माइनस 1 और X2, यहाँ पे हमारे पास E2 होगी, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है हमारी इंडक्शन मोटर के 3 फेज ऐसी रनिंग में होगी। ये है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने हमने स्टार्ट किया था इस इक्विवेलेंट सर्किट से, जो कि ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट था, इससे स्टार्ट किया था। बेसिकली वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस थिंग, और इसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप इंट्रोड्यूस कराया। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप इंट्रोड्यूस कराने के बाद क्या हुआ कि हमने ये बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप की वजह से जो रोटर के पैरामीटर्स होते हैं दे गेट इफेक्टेड,
और जब इफेक्ट होते हैं तो फिर उस इफेक्ट्स को हमने यहाँ पे शो किया ऑन द रोटर साइड। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये आपका स्टेटर है, दिस इज द स्टेटर साइड एंड दिस इज द रोटर साइड। तो हमने रोटर का जो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट था वो हमने अपडेट किया, तो इधर से वो चेंज होके आ गया इसमें, और हमने इसमें मैकेनिकल लोडिंग का पार्ट भी जो है वो ऐड कर दिया है इस रजिस्टर की मदद से। दिस इज कॉल्ड R2 1S माइनस, ये भी इसके अंदर आ गया है, रेजिस्टिव पार्ट भी आ गया है, रिएक्टिव पार्ट भी आ गया, और ये मैकेनिकल लोडिंग का जो इफेक्ट है ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। इसमें अमूमन जो है ना, अगर आपने ट्रांसफार्मर के लिए भी किया हो तो या तो आप प्राइमरी साइड पे रेफर कर देते हैं या सेकेंडरी साइड पे कर देते हैं। लेट अस सपोज वी रेफर टू स्टेटर साइड, और हमारे पास जो है कंप्लीट जो हमारे पास बनता है वो हम बना लेते हैं, कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर। रेफर टू स्टेटर साइड, ये हम इधर रेफर कर देंगे तो वी विल हैव ये स्टेटर साइड आ गई, ठीक है। सो एज द स्टेटर साइड एंड्स, तो यहाँ से हम रोटर साइड ऐड कर देंगे इसके साथ। यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस V1, वी हैव, थोड़ा सा मैं इसको बना देता हूँ, R1 X1 RC XM। जब ये हम करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास जो टर्न रेशो होती है वो इसके अंदर जो है वो मल्टीप्लाइड हो जाती है, और वी विल हैव R2। सिमिलरली यहाँ पर भी हम टर्न रेशो जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल हैव X2। और ये जो हमारे पास मैकेनिकल, इसको RL डैश कह लेते हैं यहाँ पे हम, दिस इज इक्वल टू R2, अगेन हम वही 1/s माइनस 1, और इसके साथ हम N1 ये जो है ये पे टर्न रेशो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास टर्न रेशो की मदद से यहाँ पे E2 और N1 N2 का स्क्वायर SE2 लीजिएगा। ये जो है हमारे पास कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर बन जाएगा हमारा। तो this is the total discussion, and it's a lengthy one, but obviously I have tried कि किस तरीके से starting from very basic principle आप जो है equivalent circuit जो है इंडक्शन मोटर का डेवलप कर सकते हैं, and how the different topics are interrelated with each other। बहुत सारी बुक्स में ये टॉपिक जो है ना अवेलेबल है, ये नहीं कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें सीक्वेंसिंग नहीं हुई भी होती है। अक्सर जो है बुक से जब आप पढ़ता है स्टूडेंट तो उसको ये अलग अलग टॉपिक्स लग रहे होते हैं कि जी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर जो है वो एक अलग टॉपिक है, इंडक्शन मोटर एज ए ट्रांसफार्मर अलग टॉपिक है, और स्लिप जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने इस लेक्चर में जो सबसे ज़्यादा एफर्ट की है वो इस तमाम टॉपिक्स को आपस में रिलेट करके सिंगल जो है एक टॉपिक के अंदर लेके आया हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। सो यू कैन कंसिडर इट एज डेवलपमेंट ऑफ इंडक्शन मोटर, एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, गिव इट ए लाइक और उसको शेयर करें, एंड होपफुली रिमेन कनेक्टेड। वी विल बेसिकली मूव ऑन, और अब हम जो है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर जो है उसको पढ़ेंगे, और उसको करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इंडक्शन मोटर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर होगी। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, एंड आई विल सी यू इन द फ्यूचर।